Hello, my dear friends. After discussing elimination reaction, let us discuss the competition between substitution reaction versus elimination reaction. See, it is very interesting topic. Both reactions are takes place. Let us discuss first the competition between SN1 and E1 reaction. When there is conditions are given, then there are possibilities of two types of reaction. Either SN1 takes place or E1 takes place. See, E1 is nothing but this one is elimination reaction. Here it is written SN1, so competition is written E1. When there is a SN2, then there is a competition denotation given E2, but both are elimination reaction. Actually, elimination reactions are two types, but not in our syllabus, E1 and E2, like that SN1 and SN2. Okay. So, competition is just for your understanding and to give some answers of competitive questions. I am discussing this topic because it is given in our book in one box, the substitution reaction versus elimination reaction. So, if you have prepared very well SN1 and SN2, then don't get bothered about this question. If you are interested, then try to learn it. Okay. Both reactions are takes place via carb cation. SN1 also you know that it takes place via carb cation. E1 also takes place via carb cation. So let us discuss by taking one example. See, in our textbook it is given only descriptions. I am trying to explain you by giving examples so that you can understand very well. Those who are very interested in organic chemistry, for them this is a interesting topic. But you should have a clear concept regarding SN1 and SN2. So I have taken here one moiety, means a substrate, and that is 2-chlorobutane. Okay. CH3, CH, Cl, CH2, CH3. You know the line structure very well. When it react with a C2H5OH, then in first step, either the reaction is SN1 or the reaction is E1, then first step by removing chlorine, carb cation is formed. Okay, this is nothing but the CH3 here, CH plus CH2, CH3. Okay, chlorine removed. Now question arises regarding which reaction takes place. Either SN1 takes place or SN2 takes place. So one simple clue is, if temperature is given, see here, if the reaction is heated, then elimination reaction takes place. If reaction takes place in a simple ethanol, then SN1 reaction takes place. Why? Because in SN reactions we are discussing regarding nucleophile, and in elimination is the reaction of base with acidic acid, acidic acid nahi, sorry, acidic hydrogen, because attack of base is on hydrogen in elimination reaction, hydrogen removed from beta carbon. Okay, so here it is clearly written in SN1 there is a attack of weak nucleophile. Why nucleophile is weak? Because nucleophile does not have to break carbon halogen bond, and when it is heated then it acts as a weak base. Okay, if it is nucleophile, then in SN1 it attack on a carb cation. But if it is a weak base, it acts as a weak base, then it attack on a acidic hydrogen, and that is called beta hydrogen. Okay. So simple is, if it is heated, then this C2H5O minus will act as a base, and if not heated, then this C2H5 ethoxide ion will act as a weak nucleophile. Remember, very interesting topic.
and if it acts as a weak nucleophile then it attack on a carb cation and at place of carb cation OC25 attached and ether is obtained. We will discuss this reaction SN1 in Williamson synthesis later on at the last of this chapter. Okay, now in elimination what happens? Already carb cation is formed, then it attack on a hydrogen. This C2H5 in elimination reaction, see, try to understand, this C2H5O minus attack on a beta hydrogen 2. This one is also beta hydrogen. The carbon next to the carbon containing halogen, that hydrogen are the beta hydrogen. जो क्लोरीन के पास में मतलब कि एडजेसेंट राइट साइड लेफ्ट साइड जो कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, और वही बीटा हाइड्रोजन जो है उसको एसिडिक हाइड्रोजन भी बोला जाता है। तो वो उस एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर ये बेस अटैक करता है। अगर ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो C2H5O माइनस बेस की तरह अटैक करेगा, ठीक है। तो वो कार्ब केटायन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर। तो क्या होगा, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा ये, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो जहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा तो वो हेलोजन वाला कार्बन और हाइड्रोजन निकलने वाला कार्बन उसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए दो प्रोडक्ट मिल रही है नीचे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब कि ये हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब कि ये हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। समझना, इसको आप, ये मैं लाइन स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ ताकि आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी सोल्व कर सको। ये कुछ नहीं है, टर्मिनल जो है ये CH3 है, ये CHOC2H5, ये CH2 और ये CH3, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू ज़ेफ रूल, या तो आप बोल सकते हो ज़ेफ रूल, एक प्रोडक्ट जो है हमारी मेजर है, दूसरी प्रोडक्ट जो है हमारी माइनर है। मेजर प्रोडक्ट मतलब कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आप इसको पहले राउंड कर लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कैसे करेंगे देखिए, ये पहले ये कर लो ऐसे, ये कार्बन डबल। अब इसके आसपास कितने अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्काइल ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ये 1 और ये 2, और यहाँ पे अगर हम उसको राउंड करेंगे तो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। तो सेजेफ क्या बोलता है कि वही अल्कीन ज़्यादा मिलेगा जिसके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आसपास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो। तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट ये होगी, ये माइनर प्रोडक्ट होगी। तो इसी तरह आपको ध्यान में क्या रखना है कि कब SN1 होगा, कंपटीशन कब होगी, जब न्यूक्लियोफाइल हमारा रिएजेंट उसमें से नेगेटिव आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो कैसे, जैसे नॉर्मल, अगर आप इसको हीट करेंगे तो यही न्यूक्लियोफाइल C2H5O माइनस वो वीक बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखना SN2E2 आएगा तो यही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस। एक मैं आपको यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ सीधी डायरेक्ट, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कभी आपको ऐसा रिएक्शन दिया जाए, ठीक है। ये है ब्यूटेन 2 ओल। अगर उसका एसिड के साथ रिएक्शन हो, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और उसको थोड़ी हीट दे, तो ये रिएक्शन जो होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये हीट ही बता देती है कि एलिमिनेशन होगा। तो क्या होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। देखिए यहाँ से OH निकल के पहले कार्ब केटायन बनेगा, ठीक है। उसी टाइम पे ये H+ और OH माइनस H2O कार्ब केटायन बन गया, ठीक है। बाद में यहाँ पे जो ये क्लोरीन माइनस है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा -HCl, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फिर से वही आएगी, ये मेजर, ये है ब्यूट-2-इन, ये है ब्यूट-1-इन। तो ब्यूट-2-इन उसमें दो अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगी, ये माइनर प्रोडक्ट होगी। मैं
आशा रखता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये कब SN1 और E1 के बीच में कब कंपटीशन होगी ये समझने की ट्राई करना। मैंने बहुत ही इजी मतलब कि एक रिएक्शन का सपोर्ट लेके बुक में जो वर्ड में लिखा है वो समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये समझाने की कोशिश की है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और दूसरा है, एक तो ये हीट करना, और दूसरा है जब भी ये नेगेटिव आयन बिहेव एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, एंड जब भी ये नेगेटिव आयन बिहेव्स एज अ वीक बेस। ठीक है, वीक बेस है तो H के ऊपर अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कार्ब केटायन के ऊपर अटैक करेगा। तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़रूरी है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट हो, और लेना ही चाहिए। चलिए अब दूसरा SN2 वर्सेस E2। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएजेंट व्हेन एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग बेस तो E2 ही जाएगा, एलिमिनेशन। आप E1 E2 अगर समझ में नहीं आता तो सिर्फ एलिमिनेशन याद रखिए। इफ रिएजेंट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें क्या था, वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस, देन E2 ही जाएगा, फेवरेबल होगा। ठीक है, इफ रिएजेंट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की साइन है, तो SN2 ही जाएगा। और दोनों रिएक्शन बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ वन स्टेप ओनली। रिमेंबर, एक ही स्टेप में दोनों जाएंगे। जैसे SN1 एंड E1 दोनों दो स्टेप में जाते हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, ये एलिमिनेशन का टाइप हमारे सिलेबस में नहीं है, जरा ध्यान में रखिएगा। SN1 SN2 जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे E1 E2 नहीं पढ़ रहे हैं। एलिमिनेशन में सिर्फ डायरेक्ट हम एलिमिनेशन ही पढ़ रहे हैं। फिर भी यहाँ समझाने के लिए मुझे दोनों को अलग करना पड़ रहा है, जिसमें से एक सिलेबस में नहीं है, एक एलिमिनेशन है, एक नहीं है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये वही मैंने एग्जांपल लिया है 2 क्लोरो, ताकि आप अगले वाला जो कंसेप्ट है उसके साथ भी इसका कंपैरिजन कर सके, क्योंकि यही सबस्ट्रेट लेके मैंने आपको SN1 E1 का समझाया, यही सबस्ट्रेट लेके अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि SN2। अब देखिए, KOH एक्वियस ले लो, मैंने बोला था एलिमिनेशन में KOH अल्कोहलिक ही चाहिए। अब ये भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्यों अल्कोहलिक लेंगे तो ही एलिमिनेशन होगा, अगर एक्वियस लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे KOH एक्वियस लिया है। जब मैं एक्वियस KOH लेता हूँ तो जो OH माइनस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 ही जाएगा, ये सेकेंडरी हेलो अल्केन है। टर्शरी है तो हमें SN2 सोचना नहीं है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, इसलिए मैंने समझ के सेकेंडरी हेलो अल्केन लिया है। ठीक है, तो अगर ये SN2 जाता है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कैसे होगा, तो कि एक्वियस होगा KOH, तो ये Cl निकल के डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और प्रोडक्ट जो है ये है इन्वर्टेड। अगर ये प्लेन आपकी तरफ है तो OH सामने वाली तरफ से लगेगा, अगर ये OH ये स्क्रीन की पीछे है तो ये OH आगे से लगेगा। ठीक है, ये इसमें मैंने दिखाया नहीं है, वेज बॉन्ड डैश बॉन्ड करके। आपको ये समझ लेना है कि SN2 में जो प्रोडक्ट होती है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होती है, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो आपको मिल रही है ये K और ये Cl, KCl, और सीधा OH यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे SN2 हो रहा है। अगर वही वही KOH में अल्कोहलिक ले लो, तभी ये KOH अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेस की है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन फाइंड करेगा। KOH बेस है तो एसिडिक, हमको पता है कि एसिड व्हेन रिएक्ट विथ अ बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो रिएक्शन क्या है एक्चुअली, सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब कि एसिड का एक्चुअल रिएक्शन है एसिड ऑलवेज रिएक्ट विथ बेस ऑलवेज रिएक्ट विथ H+ ऑफ एसिड एंड गिव्स वाटर।
ये एसिड का वेल नोन रिएक्ट, कोई भी एसिड हो या तो कोई भी बेस हो, एसिड जो है बेस का OH ढूंढता है, OH माइनस जो है अगर वो बेस है तो वो एसिड का H प्लस। तो यहाँ पे एसिड का H प्लस कौन है, क्या आपको पता है? ये रहा, ये हेलोजन वाला जो कार्बन है, इसके इसके बगल वाला कार्बन, आइदर दिस वन और दिस वन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिडिक हाइड्रोजन, और वहाँ पे ये OH अटैक करता है, या तो यहाँ पे अटैक करेगा या तो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये OH और ये कार्बन वाला H, ठीक है, ये दोनों निकल के हमें यहाँ बाय प्रोडक्ट मिलेगी -H2। अब ये K प्लस और ये Cl माइनस निकलेगा, और दूसरी प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिलेगी KCl। KCl माइनस है, यहाँ पे सिर्फ KCl है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, एक KCl और एक H2O। समझ में आ गया? तीसरी बात, एलिमिनेशन जब भी होगा तो जहाँ से क्लोरीन निकलेगा और जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा उस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट ये मिलेगी, ये रही, ये मेजर है क्योंकि उसके पास कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के पास दो अल्काइल ग्रुप है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से तो, और क्लोरीन तो यहीं से निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन बीटा कार्बन है, ये कार्बन बीटा कार्बन है, दो बीटा है तो दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ से निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दो बीटा कार्बन, एक बीटा कार्बन है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो ये कंपटीशन रहेगी SN2 और एलिमिनेशन। आप E2 को भूल जाइए, SN2 वर्सेस एलिमिनेशन, SN1 वर्सेस एलिमिनेशन कब होगा? ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखनी है, अगर हम KOH एक्वियस ले तो SN2 होगा, KOH अल्कोहलिक ले तो ही एलिमिनेशन होगा, वरना नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड्स। सो इन सच केसेस, अगर ऐसे केसेस जब आप कंसिडर करते हैं, देन डोंट कंसिडर टर्शरी हेलो अल्केन। ओके, इन सच केसेस जब आप टर्शरी हेलो अल्केन लेते हो तो SN2 तो आपको सोचना ही नहीं है, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएगा, लेकिन नेग्लिजिबल जाएगा ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर, तो वहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, वो एलिमिनेशन ही होगा। अगर एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है तो एलिमिनेशन की एक ही कंडीशन है, एक तो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि किसी भी सॉल्वेंट में वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करना चाहिए जो रिएजेंट हम लेते हैं। जैसे अल्कोहलिक KOH में KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन एक्वियस KOH में OH माइनस वो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो आयोनाइज हो जाता है, यहाँ पे वो आयोनाइज नहीं होता है, KOH बेस ही रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो आफ्टर ऑल दिस डिस्कशंस I have derived two important points, and that is, जब भी आप SN1 वर्सेस E1 सोचेंगे तो आपको कंसेप्ट ध्यान में लेना है, क्या वीक न्यूक्लियोफाइल है या तो ये वीक बेस है। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, ठीक है, वो मैंने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। फिर भी अगर ऐसा है तो आप इंटरनेट में सर्च मार के वीक बेस का आप लिस्ट कर लो, तो वीक बेस जो होते हैं उनका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों वीक कंसीडर करने, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 होगा, वीक बेस है तो E1 होगा। SN2 वर्सेस E2 रिएक्शन का आप कंसीडर करें E2, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा। और एक बात सुनो, अगर आपको कहीं पे भी सर्च नहीं लगाना है तो मैं जो आपको ये समझा रहा हूँ, अगर इतना ही कंसेप्ट समझ में आपको आ जाए तो आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे यूज़ में आता है बार बार, जो न्यूक्लियोफाइल और ये बेस हम रिएक्शन में यूज़ करते हैं, वही एग्जाम्पल्स मैंने लिए। अगर इतना ही आपको पता चल जाए तो भी बहुत है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये बिल्कुल पता नहीं होता है। तो अगर आपको इतना भी समझ में आ जाता है तो बिल्कुल बाहर कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लो आपका
90% काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो अब कितने वीक न्यूक्लियोफाइल है, कितने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही ध्यान रख के एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया है। ठीक है, जो बार बार हम रिएक्शन में रिएजेंट यूज़ करते हैं वही लिए मैंने। अब तीसरा कंसेप्ट आता है बल्की न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा है। if big nucleophile is there, in our textbook 2 figures are given in which one nucleophile is taken bulky and another nucleophile is taken that is a small. When small nucleophile is there, at that time SN reaction is preferable, but bulky nucleophile is there, then due to steric hindrance it cannot attack to the carbon from backside, तो वहाँ पे दो स्टीयरिक हिंड्रेंस लगेगा, एक तो कार्बन का खुद का और न्यूक्लियोफाइल इतना बड़ा है। ठीक है, अगर हम कहीं सीट पे बैठते हैं तो छोटा बच्चा है तो हम कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, अगर बहुत बड़ा आदमी आ जाता है तो कहते हैं कि यहाँ कहाँ बैठने की जगह है, नहीं बैठ सकते हो। अब जिसको बैठना है वही इतना बड़ा है, तो अब वो सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच ही नहीं सकता, तो उसके पास एलिमिनेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत बल्की है माय फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो इट ऑलवेज फेवर एलिमिनेशन। अगर न्यूक्लियोफाइल स्मॉल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल बल्की है, अब वो जो इतना बड़ा है, तो अगर कार्बन के ऊपर पीछे से अटैक नहीं कर सकता तो वो बोलेगा कि अब मैं तो अटैक नहीं कर सकता, तो वो खुद एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढता है और खुद बेस की तरह बिहेव करने लगता है कि चलो एसिड बेस वाला रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, अगर OH माइनस स्ट्रॉन्ग होता, स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियोफाइल, तो एसएन करेगा। अगर वो KOH के साथ ही अटैक करेगा एज अ बेस कंप्लीट, तो अब वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल सो फेवर्स, फिर से पढ़िए, मैंने ओवरलैपिंग कर दिया इसलिए। अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल है और वो बल्कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज बेस, तो एलिमिनेशन फेवर होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल स्मॉल है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा और एसएन रिएक्शन होगा। समझ लीजिए, ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज करके इसको, इस सेंटेंस को 3-4 बार पढ़िए। वो एक्ट न्यूक्लियोफाइल बल्की है, देन दैट न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज अ बेस एंड फेवर्स एलिमिनेशन। अगर न्यूक्लियोफाइल स्मॉल है, बल्की मतलब बहुत बल्की, OH माइनस बल्की नहीं है, C2H5O माइनस बल्की नहीं है। अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आता है तो वो बहुत बल्की है। मैं नीचे दिखा रहा हूँ कैसा है, वो कितना बड़ा है। ठीक है, ये पहले पढ़ लीजिए, आप पढ़ लिया? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये रहा आपके सामने, देखो अब ये हमारा सबस्ट्रेट है, देखो ठीक से, सबस्ट्रेट कौन सा है, ये वाला, ये कार्बन, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, और ये 3 वैलेंसी हुई ना, तो यहाँ एक दिखाना है हाइड्रोजन, वो आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन लिख लो। अब देखिए ये बल्की ग्रुप, कितना बल्की, ये कार्बन, उसकी 3 तरफ 3 वैलेंसी जो है मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाइड, तो इसका नाम है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये था पहले टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसका हाइड्रोजन निकल गया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हो गया। ठीक है, अब इसके पास 2 रास्ते, या तो ये बेस की तरह बिहेव करे या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो एसएन रिएक्शन जाएगा, लेकिन कहाँ जगह है साहब, देखिए कहाँ जगह है, यहाँ अंदर जाने की जगह ही नहीं है, और जितनी जगह है उसमें तो वो जा ही नहीं सकता। देख लीजिए, तो वो क्या करेगा कि ये जो 3 हाइड्रोजन है, मैं राउंड लगा रहा हूँ, ये बीटा हाइड्रोजन है साहब, बीटा हाइड्रोजन। ये जो 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, ये वाला, ये 3, ये बीटा हाइड्रोजन और ये 3 बीटा हाइड्रोजन, जो भी नज़दीक पड़ता है उस बीटा हाइड्रोजन, जिसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं माय फ्रेंड्स, उस एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और
जो हाइड्रोजन और यहाँ से इमीडिएटली हेलोजन रिले होगा और ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। अगर ये यहाँ पे अटैक करता है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये तीनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है, और ये ब्रोमीन निकलेगा, ठीक है, तो डबल बॉन्ड ये दो कार्बन के बीच में आ जाएगा, है ना, बढ़िया। तो इस कंडीशन में साहब जब भी न्यूक्लियोफाइल बल्की हो तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही हमें मिलेगी। और नीचे देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अब तो आपके दिमाग में पूरा समझ में आ गया। वही सबस्ट्रेट है जहाँ ये तीन हाइड्रोजन मैंने अलग नहीं दिखा है तो इससे बड़ा नहीं लगता है, इसलिए ये तीन, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, ये कौन सा, ये हेलो आल्केन है, सेकेंडरी हेलो आल्केन है। ये जो अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो बल्कि नहीं है तो इजीली कार्बन को बैक साइड से अटैक कर सकता है। ये SN2 दे रहा है, देखिए इजीली जा रहा है, कि स्टीरिक हिंड्रेंस तो है नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो छोटा है तो अटैक कर सकता है, जा सकता है अंदर, इट इज पॉसिबल। सो हियर पॉसिबिलिटीज ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तीसरा फैक्टर मैंने ये लिया कि अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की है तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही प्रीफर होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की नहीं है तो एसेंड रिएक्शन प्रेफरेबल होगा। तो ऐसा नहीं है कि जब आप एसेंड प्रेफरेबल करते हो तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, प्रेफरेबल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन ही जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरी आशा रखता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़े कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मानो कि कभी आपके पास बीटा हाइड्रोजन 1, 2 या 3 की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि वो KOH अल्कोहलिक होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो डेल्टा की साइन भी होनी चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है। तो क्योंकि टेम्परेचर पे रिएक्शन अल्कोहलिक है तो KOH क्या हो गया, बेस हो गया। बेस हो गया मतलब क्या होगा कि ये एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा, एटलीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा तो रिएक्शन क्या होगा, एलिमिनेशन। तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जिस कार्बन के पास हेलोजन है, द हेलोजन कंटेनिंग कार्बन यू हैव टू असाइन अल्फा, and then remaining carbon next to that carbon you have to assign बीटा। अगर ज़्यादा है तो आप बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ऐसा बोल सकते हो। और एक बात ध्यान में रखना, हेलोजन तो यहाँ से ही निकलेगा, लेकिन अब हाइड्रोजन अगर इस बीटा कार्बन से निकाल रहे हो, ये वाला CH3, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। अगर आप, बहुत ही ईजी है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो ये, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। जिस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहे हो आप न्यूक्लियोफाइल के, और बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ये K और ये Cl माइनस KCl, और ये OH, आइदर हाइड्रोजन फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर और फ्रॉम दिस बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो किसी एक में से निकालेंगे तो -H2O। तो हम तीनों में से बारी बारी निकालेंगे। तो आप अगर इन दोनों में निकाला मैंने यहाँ से, तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, है ना। अगर मैंने यहाँ से निकाला तो ये डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड ऊपर करना था, मैंने नीचे ले लिया ऐसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड करके, ठीक है। और मैंने यहाँ से निकाला, देखिए ये वाला निकाला, तीसरा बीटा कार्बन, ये तीसरा बीटा कार्बन है, तो डबल बॉन्ड कहाँ गया, देखिए ये आ गया डबल बॉन्ड। अब इसका नाम दीजिए, मैंने दे रखा है। आप लाइन स्ट्रक्चर में नहीं समझ में आता है तो कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म में आप चेंज कर दिया। आप 11th में पढ़े ही हो लाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका जो नाम है वो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन है,
द नेम ऑफ दिस इज 2-methyl। तो ये और ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? फ़र्क यहाँ पे पड़ता है, वो जो ये है, ये 2-methyl butene। अब तीनों में आप यहाँ पे ये राउंड कर लो, तो यहाँ पे 1 और 2 अल्काइल ग्रुप है। ऊपर चले जाओ, यहाँ पे आप राउंड कर लो कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे 1 और ये 2 अल्काइल ग्रुप है। ये कार्बन यहाँ पे करना है, ठीक है। ये कंपाउंड में पहले लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ये कार्बन, ये वाला लिख रहा हूँ, देखिए डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH3 CH2। ये CH3 CH2, ये CH3, ये कार्बन, ये 4 वैलेंसी खत्म। अब इसको राउंड करो, इसको, ठीक। तो कितना है इसके पास है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 अल्काइल ग्रुप, 1 और 2। यहाँ पे भी देखिए ये वाला, ये कार्बन डबल, तो इसके पास भी 2 अल्काइल ग्रुप है, लेकिन एक ही कार्बन जो इथिलीनिक है उसके पास ही 2 अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों साइड है तो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली भी 2-methyl। इसका अगर हम नाम देंगे तो यहाँ से 1 नंबर, 2, 3, 4, 2-methyl but1ene। ये भी हम यहाँ से नंबर देंगे तो 1, 2, 3 और 4, ये भी 2-methyl but1ene, ठीक है। तो तीनों में आप देखिए, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे करिए, एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप। तो सब जो है उसमें 2-2 अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे आप देखिए CH2, एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप। फिर भी मैंने यहाँ लिखा है कि ये मेजर प्रोडक्ट है, ये वाली मेजर प्रोडक्ट है। वाई? तो ज़ेड-सेफ या सेज-जेफ रूल क्या बोलता है कि दोनों अल्किन वाले कार्बन के पास एक एक अल्काइल ग्रुप हो, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है कि एक ही अल्किन कार्बन के पास, ये कार्बन अल्किन कार्बन है, यहाँ भी CH2 है, ये अल्किन कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास मिथाइल है और इथाइल है, एक ही कार्बन के पास 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होती है। क्योंकि यहाँ पे जो है 2 अल्किन कार्बन के पास मिथाइल मिथाइल, ये अल्किन कार्बन, ये आर्किन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये मेजर प्रोडक्ट आएगी। तो एक कार्बन के पास अल्काइल ग्रुप है, 2 है कि 1 है, तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है ना, उस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको बोला गया है सब रिएक्शंस जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, ऑल रिएक्शंस आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन को पढ़िए। प्रेडिक्ट ऑल द alkenes that would be formed by dehydrohalogenation. What does it mean? Dehydrohalogenation means beta elimination reaction. तो चलिए फास्ट में चलता हूँ। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये कार्बन कंटेनिंग हेलोजन, कितने बीटा कार्बन है? ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ से H निकलेगा, ये 3 बीटा कार्बन है, यहाँ से निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो Br तो निकलना ही निकलना है, ये वाला। हाइड्रोजन जितने बीटा कार्बन है उतनी पॉसिबिलिटी है, तो ये दोनों सेम पॉसिबिलिटी है। 3 पॉसिबिलिटी में से मैं 2 ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ से निकला, ठीक है, अगर यहाँ से निकला
और यहाँ से निकला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डबल बॉन्ड उस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, लेकिन यहाँ से निकला तो फ़र्क पड़ता है, ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगी ये डबल बॉन्ड वाली, और ये मिलेगी। बाई प्रोडक्ट में हम देखें तो ये H और ये C2H5OH और HBr, ये H प्लस और ये Br माइनस, माइनस HBr, और ये जो है बेस वो एसिडिक हाइड्रोजन या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं पे भी अटैक करेगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, इसमें से एक मेजर है क्योंकि यहाँ पे देखिए दो अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप ये और दूसरा ये अल्काइल ग्रुप, तो और यहाँ पे तो ये इथिलीनिक कार्बन के पास है यहाँ पे ये देखिए, लेकिन यहाँ एक इथिलीनिक कार्बन जो है उसके पास दो हाइड्रोजन है, वहाँ अल्काइल ग्रुप नहीं है। ये अभी अभी मैंने जो लाइन स्ट्रक्चर में बताया वो 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन ही था। ठीक है, देखिए ऐसे ही था ना स्ट्रक्चर, ऐसे ही ड्रॉ किया था मैंने। 2-chloro, यहाँ पे क्लोरीन था, 1-2 2-chloro-2-methyl, ऐसा ही था स्ट्रक्चर। आगे मैंने किया, दिखा दो एक बार, ये वाला देखिए 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, ये लाइन स्ट्रक्चर में है, तो ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी है, तो आप फिर से ये आंसर दे दीजिए। अब तीसरा देखिए 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3-ब्रोमो-पेंटेन। अब ये जो है वो अल्फा कार्बन, अब कितना बीटा कार्बन की कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है, ये बीटा कार्बन, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। द कार्बन कंटेनिंग हेलोजन, द नेक्स्ट कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। तो दो पॉसिबिलिटीज, हाइड्रोजन वहाँ से निकालिए, तो हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा, और ये ब्रोमीन माइनस HBr और C2H5O माइनस ये ब्रोमीन और एसिडिक हाइड्रोजन, बेस जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तो जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, देखिए जहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर यहाँ से निकलेगा यहाँ से तो ये डबल बॉन्ड, अब दूसरा जो है वो ये बीटा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो दो प्रोडक्ट मिलेगी। देखिए एक ये डबल बॉन्ड वाली, एक के ऊपर डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो एक ये अल्काइल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप और ये तीसरा अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है। अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक और दो, दूसरे कार्बन के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू J-Ceph रूल। ओके, ये फिर से बाय प्रोडक्ट में आपको समझा देता हूँ। ये C2H5O जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्ट करेगा, वो H प्लस को लेके आएगा, तो C2H5OH हमें वापस मिलेगा। अब ये हाइड्रोजन जो है H प्लस वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी, वो होगी HBr। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा हमें चैप्टर को आगे बढ़ाना है, SN1 SN2 को। अब एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आफ्टर SN1 SN2 and elimination is there. This is the last question. After that I am going to complete the lecture, और the question is write a note on Grignard reagent. ठीक है, और you are asked that explain the reaction of haloalkane with metal. बहुत ही यूज़ आने वाला है आगे वाले चैप्टर में। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, we have to use lot of time Grignard reagents. So be ready to learn regarding Grignard reagents. So Grignard reagent means RX haloalkane when react with a metal, and especially the metal is, any metal is there, very active metal, sodium also there, but in 12th standard we will use that metal is the magnesium metal, remember, and that magnesium metal react with RX, तो ये magnesium metal इसके बीच में आ जाएगी और वो अल्काइल का कार्बन जो है उसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, X के साथ की बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और
इसमें देखिए ये ऑर्गेनिक है, RX इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, Mg इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज द मेटल, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन मेटल बॉन्ड, और मेटल हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और हेलोजन सिर्फ 3, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है, इसके लिए इस विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला है सिर्फ यही कंपाउंड के लिए, क्योंकि दिस कंपाउंड एक्सप्लोर सो मेनी गेट्स टू प्रिपेयर वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माय फ्रेंड। तो ये विक्टर ग्रिग्नार्ड को सिर्फ ये कंपाउंड बनाने के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला है। उसको RMGX, RX के बीच में MG आ जाता है, इससे सैंडविच की तरह, RMGX। तो रिएक्शन कैसे होता है देखिए, रिएक्शन इज कैरिड आउट विथ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंट में, सॉरी, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, अदरवाइज मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम ड्राई ईथर यूज नहीं करेंगे तो मैग्नीशियम का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो कोई भी हेलो अल्केन ले लो, ये पहले जनरल रिएक्शन देख लो, any halo alkane react with a magnesium in presence of dry ether solvent, the RMGX is obtained and that is called Grignard reagent। अब इसके नीचे ये एग्जाम्पल लिख लेना, ब्रोमोइथेन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और तो हेलोजन और अल्काइल ग्रुप के बीच में मैग्नीशियम आ जाता है, सो इट इज कॉल्ड, राइट डाउन नेम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब चलिए ये कंपाउंड जो है उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, क्योंकि बॉन्ड RMGX बॉन्ड है उसको समझना भी जरूरी है कि कैसा बॉन्ड है, तो रिएक्शन में जब हम समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक बॉन्ड है RMG जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, अल्काइल मीन्स कार्बन, तो RMG बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है लेकिन हाईली पोलर है, टूट जाएगा। ये बॉन्ड भी टूटेगा रिएक्शन में, ये बॉन्ड भी टूटेगा, मैग्नीशियम हमें मिलेगा ऐसे ही, इसलिए बहुत बढ़िया कंपाउंड है। और MgX बॉन्ड है वो तो हमें पता है, मेटल और हेलोजन, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 17 आयोनिक बॉन्ड, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 17 आयोनिक बॉन्ड, तो ये आयोनिक बॉन्ड है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हमें कोवेलेंट एक साइड, लेफ्ट साइड कोवेलेंट बॉन्ड एंड राइट साइड आयोनिक बॉन्ड, सी हियर लेफ्ट साइड इज दिस वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, दिस वन इज द आयोनिक बॉन्ड, दो बॉन्ड एक ही कंपाउंड में, कितना बढ़िया कंपाउंड, कितना बढ़िया कंपाउंड, वेरी गुड। Grignard reagent are highly reactive, क्योंकि due to these two bond it is highly reactive and it react with a source of H plus and it gives us hydrocarbon। कोई भी रिएजेंट जो H plus देने के लिए तैयार है उसके साथ वो इजीली रिएक्ट करेगा, एंड especially in organic chemistry it gives us a hydrocarbon from haloalkane। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन प्रोवाइड रिएक्टेंट्स आर वाटर, अल्कोहल, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एटसेट्रा। एक रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ, चलिए ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विथ अ वाटर, ठीक है, तो यही हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड टूटेगा R माइनस Mg प्लस। ठीक है, अब जरा समझिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये R माइनस होगा, ये Mg की 2 प्लस वैलेंसी है, Xb माइनस है और माइनस 2 प्लस, तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज आएगा Mgx प्लस। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड टूटेगा पहले, ये माइनस Mgx प्लस, तो ये H प्लस OH माइनस, तो ये R माइनस ये H के ऊपर अटैक करेगा, हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा, और ये OH माइनस जो है वो Mg के ऊपर अटैक करेगा, तो MgOHX मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड हमें कंपाउंड मिलेगा। तो देखिए मैंने बोला था Grignard reagent is useful to prepare hydrocarbon from haloalkane, so it is therefore necessary to avoid ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर। अगर थोड़ा भी इसमें मॉइस्चर होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो काम नहीं करेगा, तो ड्राई एटमॉस्फेयर, सो वी आर यूज, दैट्स व्हाई द होल रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कैरिड आउट इन अ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर, देखिए अगर थोड़ा भी मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर मतलब कि मैंने यहाँ वाटर ले लिया,
तो क्या हुआ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। RMgX इसका जनरल फॉर्मूला, उसमें से हाइड्रोकार्बन मिल गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड मिल गया, ये +2 ऑक्साइड -1 X -1 न्यूट्रल पूरा कंपाउंड। तो जहाँ पे भी ये वाटर हो या अल्कोहल हो या प्राइमरी एमाइन हो तो RMgX डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर रिएक्शन करवाना है तो कोई बात नहीं, तो फिर डाल दो। चलिए अब लास्ट पॉइंट, मुझे पता है कि थोड़ा मैंने लंबा खींच लिया है, फिर भी आप माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मुझे लेना ही लेना था। दैट्स वाई द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ड्राई ईथर, ये मैंने ले लिया। तो अब देखते हैं RMgX का इंट्रोडक्शन लास्ट में दे देता हूँ। RMgX में R क्या है, तो R सिर्फ अल्काइल ग्रुप नहीं है, अल्किनाइल मीन्स डबल बॉन्ड वाला भी ग्रुप हो सकता है, अल्काइनाइल मीन्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ग्रुप हो सकता है, या तो कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे R फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मे बी अल्काइल, मे बी अल्किनाइल, मे बी अल्काइनाइल और मे बी एरोमेटिक एराइल। एंड व्हाट इज Mg, तो आप जानते हो Mg को तो क्या बताना, मैग्नीशियम मेटल है। अब हेलोजन तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 3 इधर क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, और ये हमें काम में आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो मैंने सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन काफ़ी रिएक्शंस ऐसे हैं माय फ्रेंड, सो मेनी रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर देयर in which Grignard reagent is useful to prepare many organic compounds, okay, that we will discuss in organic compound containing oxygen, organic compound containing nitrogen। तो यहीं पे हम ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।